a little long and always like trained under you. So praying is definitely one thing. As help me do the right thing. I first want to give you a lot of gratitude and love. You have to prepare yourself and give it. हर decision के लिए इतनी वो नहीं मिलती timing. Hello sir, how are you? I'm well. How are you? I'm good. Welcome to Delhi. Thank you. Delhi is treating me nice and the weather is good and I'm super happy to be here. It's the best time to be here. मतलब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है और Pleasant सा है. It's the best. मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ों में हूँ. मैं तभी तो अभी वापस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यार ये कैसे मिस कर सकता हूँ. That's nice. Yeah. It's so nice. Okay, sir. So I first want to give you a lot of gratitude and love because my mindset is your mindset. Whatever I've carried on today, I would be really grateful to put this right in front of him that he is this man who has always opened my horizons to think bigger. So thank you so much, sir, for that. Thank you. And I want to ask you a couple of questions about leadership. I've been watching your journey and I've seen your journey from a little long and always like trained under you. So I want to ask you, how do you handle the decisions that you feel fear with? That's a very good question. So मैं कोशिश करता हूँ कि when there are difficult decisions to be done, तो I sleep थोड़ा सा ज़्यादा उससे पहले. So what I do is I pray a little bit to whoever my spirit guide is, or some people pray to an idol, कुछ Ram ji, Shiv ji, Vishnu, or some people just pray to a spirit guide. Or my grandfather died many years ago, so here where is खड़ा, so I feel he is with me. किसी को भी आप pray करके and then सो जाओ. Okay. तो मैं उस दिन जल्दी नहीं उठता कि 6 बजे उठना है whatever. तो आप उस डिसीजन को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं और बाद में लेते हैं. हाँ, because जैसे आपने कहा ना जिसमें fear होता है तो fear और anxiety होती है, ठीक होगा नहीं होगा, वो क्या बोलेगा, मेरा क्या जवाब होगा, तो you have to prepare yourself and give it. हर डिसीजन के लिए इतनी वो नहीं मिलती टाइमिंग यार, आप सब तो जल्दी करना पड़ता है. सो प्रेइंग इज डेफिनेटली वन थिंग. ऐसे हेल्प मी डू द राइट थिंग जिसमें मेरा कर्म भी अफेक्ट ना हो. बिकॉज राइट थिंग तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे बिजनेस के राइट थिंग है, मैं उसको लूट लिया मैंने पैसे में, या मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, या मैंने अपने लिए कर लिया. विच इज एक होता है ना बिजनेस का भी धर्मा होता है, तो बिजनेस के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कर्म भी बनता है ना. सो एज यू ग्रो ओल्डर लाइक मी, यू स्टार्ट थिंकिंग अरे यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या ज़्यादा गलत तो नहीं कर रहा हूँ. एक गुरुद्वारे का उस दिन में गया था, फ्रेंड ऑफ माइन हैड अरदास, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी ग्रंथी जी ने. उन्होंने बोला था कि उस चीज़ की माफ़ी मांगो जो कर्म जिनके बारे में तुमको पता ही नहीं है कि तुम कर रहे हो. बिकॉज एक दिन वो हिसाब, आई मीन इट्स लाइक अ साइंटिफिक थिंग, एक दिन हिसाब होगा, बोलेंगे वो अरे उसको तो रहने दो सर, ना उसके भी नंबर कटेंगे सर, कम ऑन सर, देखो वो सच अ गुड थिंग. वो कह रहे यार मेरा तो हिसाब है. सो pray and say please help me take the right decision according to my karmas and help give me the strength to be right. तो फिर जब स्ट्रेंथ, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ उससे आ जाती है, थोड़ी प्रैक्टिस करके आ जाती है, थोड़ी सी एक्टिंग भी करनी पड़ती है. That's true. That's very true. You have to act that, you have to act that you are not in the fear, but you have the fear. Of course. Right. Yeah. Awesome. So I think next question that I want to ask you is about this whole responsibility in the leadership. And I've seen certain leaders who walk ahead and lead people. And I, as an entrepreneur, as a leader, you have sometimes you come on face and you have been, wearing the hat of leader on the front, but somewhere you are sitting in Vancouver and handling the whole show behind the scenes. Yeah. So you're both the leaders. So do you want to give some like tips of how to lead from the behind? Yeah. See, the thing is that अगर मेरे को फ्रीडम चाहिए टू ट्रैवल टू डू ऑल ऑफ दैट, तो फिर मुझे दूसरे लीडर्स क्रिएट करने हैं. जब आपका बिजनेस छोटा होता है ना, लाइक आई एम गॉट 100+ पीपल, इट्स अ स्मॉल बिजनेस, इट्स नॉट अ कॉर्पोरेशन. ऐसे छोटे बिजनेसेस में दादाजी को ध्यान रखना होना चाहिए अपने बिजनेस का ज़्यादा, ऑल द टाइम मेरे हिसाब से. यू जैसे ना, मुझे लगता है कि अगर आप अपने मंदिर के खुद भगवान हो, अगर मंदिर बिना भगवान के होगा तो उस मंदिर में लोग नहीं आएंगे. सो यूर द एसेंस एंड लाइफ ऑफ योर बिजनेस. अगर आप ही नहीं होगे तो लोग नहीं आएंगे. तो आपको फ्रंट से लीड करना है. तो आपको फ्रंट से लीड करना है, चाहे आप कहीं भी हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, फोन करना है, क्लाइंट से बात, सब कुछ करना है, उसको मिस नहीं करना चाहिए. हाउएवर आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड लीडर्स, थ्रो देम इन द डीप एंड अ लिटिल बिट. मेरे से नहीं होगा, अरे होगा तो कर. नहीं सर, आप सर इस्लाम मेरे साथ चलो, यार बार-बार मैं ही जाऊंगा तुम्हारे साथ हर मीटिंग में, यार कम ऑन, व्हाट द हेल इज दिस. फिर वो जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ. तो आपने सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स को ट्रेन किया
और फिर उन्हें आप सेकंड थर्ड सबको मैं नीचे तक को ट्रेन करता हूँ सबको ओके चले जाओ आप खुद पर्सनली ये टाइम और बिकॉज सी अगर मैं वो करूँ देन ओनली आई कैन टेक टाइम आउट राइट मैं अभी यहाँ आपके साथ बैठा हूँ हमारा ऑफिस तो चल रहा है 11 बजे तक सो इट्स बिकॉज कोई तो बैठा है ना वहाँ सो उन्हीं को ट्रेन कभी क्लाइंट फेसिंग बनते हो कभी उनको ट्रेन करते हो बिकॉज जितने लोगों को आपने ट्रेन किया उतना टाइम आप आराम से बैठ के यू कैन थिंक अबाउट योर बिजनेस आप लेवरेज कर सकते हो उसको ओके ओके सो यही मेरी जर्नी है एज इन लाइक मैं अभी सीख रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप क्वालिटीज तो जैसे कोच हम कोचेस काफ़ी सारे हैट्स पहनते हैं कभी हमें कलर्स पहन के हम कुछ वीडियो बना रहे होते हैं कभी हमें लोगों को लीड करना होता है कभी हमें एडुकेटर बनना होता है कभी हमें एंटरप्रेन्योर बिजनेस साइड देखनी होती है तो हम बहुत सारी हैट्स पहन के चल रहे होते हैं तो सर आप क्या टिप्स देंगे जो अपकमिंग कोचेस हैं और जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं कि किस एरिया को ज़्यादा सपोर्ट देना चाहिए एम्फेसिस देना चाहिए फर्स्ट रूल ऑफ लर्निंग इज बाय यू लर्न बाय इमिटेशन सबसे पहले ऐसे होता है चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो ड्राइंग हो आपको आप आर्ट सिखाते हो तो आप सबसे पहले वही सिखाते हो कि पहले मेरी कॉपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग राइट कॉपी करते हो सबसे पहले so that's why I tell people that get into a community of somebody who's closest to where you want to be tomorrow and उसको कॉपी करो बाद में आपको उस आदमी की कुछ चीजें नहीं अच्छी लगेंगी कुछ अच्छी लगेंगी जो नहीं अच्छी लगेंगी छोड़ देना जो अच्छी लगेगी रख लेना ओके and that's how you become your own this thing लवली तो ये कंटेंट क्रिएशन वाला जो पार्ट है उससे आज भी जो मेरे सारे आर्टिस्ट जो आए थे वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि और यहाँ पे जो भी सुन रहा है उनका भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट कैसे बनाओ और आप वो फोकस नहीं कर पाते कि हमारा ये क्रिएशन जर्नी है या क्रिएटर जर्नी है Sure, that's a good question. तो आप उन नए लोगों के साथ जो मार्केटिंग इज द क्रक्स ऑफ एवरी बिजनेस तो करना तो है ही तो आप क्रिएशन और क्रिएटर वाले जॉब दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हो See the thing is कि before हर चीज का एक before during and after होता है right so you just put those when you compartmentalize things in your head then things become easy oh my god आज मुझे दिन में 10 काम करने हैं चलो कोई बात नहीं अभी तो मेरे को स्कूल जाना है ना उसके अभी तो मैथ्स की क्लास है ना ऐसे ऐसे करके आप कंपार्टमेंटलाइज करते हो सिमिलरली जब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी होती है यू से ओके आई एम एन आर्टिस्ट जैसे अभी जो जयश्री वाज हियर शी सेड आर्ट कैफे सो before when she's getting up and when she's preparing in the morning और पेंट ब्रशेस वगैरह डाल रही है किसी कैफे में जाने के लिए tell somebody to shoot यार आज मैं लेट हो रही हूँ मुझे डर लग रहा है what I don't know क्या होगा लेट हो जाएगी shoot that part when she goes there shoot that part और वहाँ जो ड्राइंग कर रही है shoot that घर जाते हुए shoot करो उस पार्ट को so it's like you know you document what's happening I know I think the best talking about your first coaching as MVM that he introduced and guys this is MVM that if you are watching this you should try this अगर आप कैमरा से बहुत डरते हो तो आपको MVM करना चाहिए तो सर आप बताइए कि ये जो कैमरा के साथ एक रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश करने में हमें भी बहुत टाइम लगा था आपने मुझे भी काफी गाइड किया था कि अपने एक बेस्ट फ्रेंड को सामने रखो उनसे बात करो तो कैन यू गिव लाइक 3 टिप्स फॉर आर्टिस्ट की कैमरा के साथ एक दोस्ती कैसे बनाए सो द थिंग इज कि कैमरा के साथ दोस्ती ऐसे बनाते हो आप जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड कॉफी लेके आता है आपने कभी कॉफी नहीं पी दा यार मैं बोल रहा हूँ मेरी बात नहीं मानेगा राइट या फ्रेंड सिगरेट भी लेके आते हैं बाय द वे बट हम दोस्तों से ही सीखते हैं अच्छी और गलत आदतें राइट तो बिकॉज यू ट्रस्ट समबडी वो लेके आता है दैट ट्रस्टेड पर्सन कैन गेट एनीथिंग दैट्स व्हाई दे से संगत का ध्यान रखो सो इफ योर फ्रेंड इज होल्डिंग द कैमरा or your mom is holding the camera, your dad, your somebody who you trust is holding the camera, you feel ये वो लेके आए तो वो लेके आया और वो कह रहा है तो ठीक होगा that's why I said friend that's one second is मेरे कैमरा के ऊपर तो मैंने उस टाइम लिखा था dude was my dog who was with me for 17 years and he died so we kept dude so dude was always like everything was dude हमने so मैंने वो रखा था so again somebody that you sort of love and you can talk to and the third thing is that you know the people that who you making content with you can have 3-4 people with you that's all जैसे आज हम लोग बैठे हैं चलो साथ मिल के करते हैं तो एक ने किया तो अच्छा तू क्या क्वेश्चन पूछता चल तो इजी हो जाता है यू somebody walk the path आप कहते हो अच्छा ठीक है उसी ट्रेल को मैं फॉलो कर लूं fourth is one more thing I can say is कैमरा के सामने शुरू से कुछ बोलना मुश्किल है लेकिन अगर कैमरा ऑन हो जाए और कोई दूसरा साथ में आके आपसे सवाल पूछे तो इट्स इजी
Yeah, like this podcast becomes very easy. So collaboration can be one of the when somebody ways. comes, you don't feel I'm on the spotlight. Then you're like, oh shit, क्या बोलूं? हाँ. Like, दो That's लोग, true. हाँ, somebody asks you, अच्छा ठीक है, कहाँ से है? अच्छा रेलवे स्टेशन से है? Yeah. फ्लाइट में, कल की फ्लाइट कैसी थी? अच्छा कैसी की आपने आर्ट के, you know what's the role of pink? You know this is not pink, this is mauve, or this is magenta, or Magenta whatever. pink. So then a Yeah, conversation it becomes easier. Yeah. Awesome. So, sir, I want to ask you a couple of questions about me personally now that you've seen my journey. What you've seen me 2 years back to now, what do you think of where I'm going, my alignment in the direction as an entrepreneur? So, like I said, as an entrepreneur, as a human being, I think like you were, I think you're relentless. कि आप you don't take no for an answer. आप लगे रहते हो. You've been all over the country. You've been for so many classes, so many coaching, because that's what you have to do, right? You have to try 10 things to see, okay, ठीक है. I tried Thai, I tried Mexican, I tried Mongolian, I tried and Indian. this is what I like And now when my Yeah. meal in the evening has to be that bowl, इसमें छोटी, those fixed bowl, bowls with a little bit of salad, a little bit of chicken. Yeah, How do you know? हाँ, वो थाली. Yeah. So thali, because आपने सब कुछ try किया, now you made your own thali. Platter, yes. Right. So yes. that's how you've done it, and that's उसमें लोगों को डर लगता है क्योंकि कितने पैसे लगे हैं, कितनी flights ली हैं, and all of that. Yeah. So जब भी आपको डर लगे, you think of yourself and say कि you're somebody who's इतना कुछ कर लिया तो डर की तो कोई जगह शायद थी नहीं. Yeah. And आगे भी this field, because I remember 2 years back when we were talking, you were like hotels में जाके exhibition लगाएंगे. So I was like, no, you can't do that. That's Hotel true. take ages to give a yes or वो पैसे नहीं देंगे. And you were like, नहीं. Again, नहीं, after 2 मुझे तो months वही idea, करना है. नहीं एक होटल से मिलवा दो मेरे को. It's going to be total chaos, and you're going to get, वो निराशा हो जाएगी. I remember, I think W gave me this offer in Goa. To put my artwork, and I was looking at the ceilings, I was looking at walls, and I was like, मेरे पास तो इतना artwork ही नहीं है, मैं कहाँ से लगाऊं? And top of that, like, so this is one thing that the target audience that you are always, like looking for, and what you exactly have, there's this mismatch for artists all the time. So they don't know that who is my target audience and where they are selling. So that was, I think, that's where I was also there. And I was like, who is my target audience? I don't know. So it takes that journey. So sir, 100%. वो जैसे भी शार्क टैंक भी कल वो कह रहा था, conscious chemist. वो कहता I put hundreds of iterations to create a product, and I've got 29 products. I was like, my God, ये कितनी बार फेल हुआ ये आदमी. Yeah, cosmetics जो बना रहा है. Yeah. तो he said hundreds to make one. नहीं यार ये नहीं हो रहा, इसमें कुछ और डालो, ये नहीं हो रहा कुछ. अच्छा एक बन गया. ऐसी 29 बार उसने किया. So it's not people realize that that's a process, So sir, entrepreneurship journey में ये I think फ्रॉम माई ओन जर्नी कि मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशंस करा है और डरा नहीं है, वो सारे एक्सपेरिमेंट करते गई. तो व्हाट डू यू थिंक दैट एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन शुड यू, like the 4 kind of entrepreneurs that Rajiv Talreja also talks about, कि जो एक पहला एक बंदा होता है जो सिर्फ entrepreneurship fancy लग रहा है करना है. सेकंड एक बंदा है जो बोल रहा है कि मुझे I want to sustain my family, पैसे बनाना है. तो किस पॉइंट पे, आई थिंक ये 2 कैटेगरीज में से किस पॉइंट पे एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए कि यार वापस जॉब कर लेते हैं. आई थिंक एक स्टेज मेरे लाइफ में भी था जब मैं सोच रही थी कि यार बहुत सारे स्किल्स है, कुछ नहीं हो रहा बिजनेस में. तो which is that stage where you think the entrepreneur should really think of always getting back to job? See, the thing is कि पहली बात तो जॉब की डेफिनेशन चेंज हो जानी चाहिए थोड़ी सी अपने माइंड में. अगर आप अपने बोलो कि यार what, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर जाता है किसी एजेंसी में और कहता है कैन आई हेल्प यू, ये सर जॉब दे दो, नहीं बोलता कैन आई हेल्प यू. So mindset is different, that I am the skilled professional, I can help you and I'll charge a certain remuneration for a month. And I may or may not work with anybody else. That negotiation we can do. So they go in with that confidence. अगर आप उस कॉन्फिडेंस से जा रहे हो तो आपको जॉब और इसमें स्केल करने में, कुछ लोग तो अभी भी जॉब कर रहे हैं और साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और एक फिक्स जॉब रखा हुआ है क्या पैसे. दैट शुड बिकम नॉर्मल, बट क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार आई हेट दिस बॉस, इसको मैं एक दिन दिखाऊंगा. 3-4 चीजें होती है. एक होता है कि प्लीज सर मुझे जॉब दे दो और मैं हमेशा ऐसे रहूंगा, यार मुझे नौकर बन के नहीं रहना. भाई नौकर बन के क्यों रह रहे हो, किसने बोला, तुम नहीं बोला अपने आप को, यू बिहेव लाइक दैट. वो कीड़ा है. एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा यंगस्टर्स इंस्पायर भी हो रहे हैं कि कीड़ा है. फिर वो देखते हो बॉस, यार ये साला बस मुझे सुबह 9 बजे बुलाता है, मत जाओ, डोंट गो, टेल हिम आई कांट कम, फिनिश इट.
डू समथिंग एल्स, गो टू अनदर बॉस जो तेरे को 12 बजे देगा, कोई किसी को बंदूक थोड़ी रखा है किसी के सिर पे। सो आज भी मैंने एक पोस्ट देखा था दैट वन ऑफ द बेस्ट स्लीपिंग पिल्स इन द वर्ल्ड इज ब्लेम। शिट कुछ नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, हाँ यार ये सब मेरी बॉस की वजह से हो रहा है, ठीक मेरी तो कोई गलती नहीं, हाँ अब ठीक लग रहा है, सो जाता। Okay. So you like, oh, okay. So Stop blaming anybody. You've put that on someone else's shoulder and you're sleeping. Use a sleeping. It's the best sleeping pill. कब मिल जाए ना कोई मिले मुझे अपने माइंड सारी गलती किसी और के, सो जा। अरे भाई अगर आपको ओनरशिप लो, आप ओनरशिप लो, मेरा जॉब है, मेरे को करना है, मैंने आगे बढ़ना है। और अगर उसके पीछे आपकी कोई मजबूरी है कि माँ बीमार है इस वजह से कर रहे हो, तो वो आपकी मजबूरी है ना, देन एटलीस्ट शो अप वेल। डोंट ब्लेम एनी, बिकॉज आज अब जो आदमी आज बॉस को ब्लेम करेगा कल क्लाइंट को ब्लेम करेगा, गारंटीड। छोड़ दो उसको ब्लेम, किसी को भी ब्लेम करना। एंड सेम फॉर द बॉस, बॉस कांट ब्लेम हिम। अगर आपने रखा है यार मेरे एम्प्लॉय सुनते नहीं है, गेट रिड ऑफ देम, फायर देम। या सो ये फायरिंग वाले क्वेश्चन से मैं ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप फायरिंग करने से पहले कितने मौके देते हो और किस पैरामीटर्स पे फायर करते हो? क्योंकि मेरी कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है तो इससे मेरा कुछ सेट रूल नहीं है। सर हम अभी तो 2-3 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप 100 लोगों के साथ काम नहीं, पता है क्या, ज्यादा टाइम जैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता टू गेट टू नो मोस्ट पीपल। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिस्टम बना दूं, बोलो कि 3 वार्निंग देने के बाद निकाल देना मेरे बिना। मैंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है 75% कि मेरे आई वांट टू नो व्हाई दैट पर्सन इज लीविंग, क्योंकि मैं नेक्स्ट बंदा फिर बेटर लाऊंगा ना। आई डोंट, मेरे लिए मुश्किल है टू हैव रूड पीपल, क्योंकि आई डोंट टॉक बैडली at all. You're sweet all the time. Yeah. Yesterday he was asking, I mean, Lakshmi he was asking, 2 साल में सर को कभी गुस्से में देखा है? And I was like, नहीं. But I think मैंने आपको रॉकस्टार एटीट्यूड में देखा है, जो आपने एटीट्यूड में किसी को जवाब दे दिया। वो आगे होगा कभी। वो मतलब it is that you're like straight upfront but not rude at all. This is question, I can edit it later, but how do I do this? Because I am very like rude sometimes. मेरे को बहुत टाइम लगा था वो भी सीखने में। But to answer this question, मेरे लिए मुश्किल है, maybe it's my weakness, but I don't like rude people. So अगर कोई आदमी बार बार रूड थी, मेरे को तो क्या रूड हो गया बार बार, लेकिन इसका मतलब मेरे क्लाइंट से भी रूड हो गए, टीम से भी रूड हो रहे हो, तो अगर पोजीशन या किसी भी, तो मेरे लिए वो मुश्किल है। वो मूडी लोग हैं जो थोड़े से किसी और से दुखी होना यार, सिंपल सी बात है, जो किसी और पे निकाल रहे हो। सो रूड पीपल हु आर लाइक डाउनराइट रूड, मूडी फिर भी ठीक है, रूड नहीं हो सकते, लाइक यू कांट टॉक डाउन टू समबडी, दैट्स वन। अपना घर का गुस्सा अपने घर पे रखो और कंट्रोल करो अपने आप। तो ये एक इमोशनल कैटेगरी है जहाँ पे आप बोलते हो कि ये बंदा फिट नहीं हो रहा कंपनी में। दूसरा ये है कि आपके पास मेरे एसओपीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई एम गाइडिंग द कंपनी, मुझे पता है, पहले आएंगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, 2 बार लेफ्ट देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी में होता है, जैसे सबके हाथ एक साथ जाते हैं परेड में, एक बंदा बोले नहीं यार आई थिंक मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट ऐसे देखना कि ज्यादा, गेट आउट इन अ सेकंड। एक कंपनी एक रिदम के जैसे चलती है, अगर आप रिदम के जैसे नहीं चलाओ तो आपको यू हैव करोड्स एट स्टेक, एंड आपने अपने घर के बच्चों की फीस देनी है, बाकी सब 100 लोगों ने कोई ना कोई फीस ईएमआई देनी है। एक बंदा बोले मैं अपनी तरफ से जा रहा हूँ, क्लाइंट बड़ा क्लाइंट चले जाए, इट कैन क्रिएट chaos इन द कंपनी। सो अगर कोई एसओपी नहीं फॉलो कर रहा ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये एसओपी बनाना जरूरी है, और ये मॉडिफाई भी होते हैं जैसे हमारी एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, हर महीने मॉडिफाई होता है, फिर बताना पड़ता है अब ऐसे नहीं होगा, मौसम बदल रहा है, 1 महीने बाद एसओपी ये होगा, डेली का एसओपी है कि स्वेटशर्ट नहीं पहननी, टी शर्ट पहननी है। उसके बाद फिर दूसरा मौसम आएगा, मौसम बदलेगा, लोग बदलेंगे, तो आप यहाँ से दूसरी सिटी में जाओगे तो यू ऑल्सो चेंज ना, नहीं मैं तो सिर्फ स्वेटर ही पहनता हूँ, यू कीप चेंजिंग, यू कीप टॉकिंग टू पीपल। किसी सीनियर को बैठो गुड मॉर्निंग सर हाउ यू, किसी जूनियर को बैठो क्या हाल है बेटा, हम बदलते तो रहते हैं, एक चीज को कर ही नहीं सकते। जो नहीं बदलेगा, और मैंने बहुत टाइम लगाया, ये मुझे पहले करना चाहिए था, बट सॉरी, नो एसओपी, यू आर आउट। नाइस, ओके। पूछो सर, थक गए? नहीं बिल्कुल नहीं थका। इट्स जस्ट दैट दिस हैविंग फन, आई वांटेड बैक रेस्ट। आप जो मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो लीडरशिप वाला, यही कि आप 100 जो 100 लीडर्स, मतलब 100 पीपल, आउट ऑफ दैट मे बी 10 आर लीडर्स, सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स, और आपने ये बताया एसओपी, मतलब आई एम जस्ट रिवॉल्विंग माय हेड अराउंड इट कि इफ आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, thank you so much, that's it nice, thank you. I think we should have done this on a couch. पता है, मैंने ऊपर एक पिंक कलर का काउच देखा था, everything pink for me is like so fancy for me. पिंक वाला काउच। My favorite color has been red for
2,000 years. Now all of a sudden I'm going towards green. Green. Yeah, dark green, those mauve and Olive velvet. green. Yeah, olive green, velvet, and a little bit of blue. Anyway, Oh, nice. Yeah. So, like for the interiors or for wearing? for the couch. For the couch. Green and royal blue, nice My sister's background. doing up my room, and so she's amazing at it. So I told, Nice. she said, "No red, thank God. How much can I do with the red?" Yeah, sir, I've seen you so much red everywhere. The whole brand was all red. अभी भी वो तो वैसे ही रहेगा. मैं 2 साल से इस कलर से प्यार में हूँ और मैं ये हर जगह मेरे ब्रांड में है. It's so important. It is so important. पहली बात तो अंदर से होना चाहिए ना. Yeah. No, so you had a thing when you were saying that how do you Yeah. how do you fire when you अंदर से नहीं हो रहा, whatever, something like that. हाँ, so वो फायरिंग वाला क्वेश्चन हो गया. आई वांटेड टू नो कि मेरे अंदर लाइक आई हैव सम वीकनेसेस एज अ एंटरप्रेन्योर और आपको भी पता है कि आपके भी कुछ वीकनेसेस होंगे एज एन एंटरप्रेन्योर और वो आप एकदम तुरंत मैं 2 साल से को फाउंडर ढूंढ रही हूँ, मिल तो नहीं रहा. और वो शादी से भी मुश्किल होता है को फाउंडर ढूंढना. तो बाय द वे, सो दैट इज वन क्वेश्चन कि हाउ डू यू एक्चुअली complement the skills that you want in a co-founder, and how do you like go about doing this? Like for me, simply organizing and management is not the skills that I've acquired, or nor am I interested in doing too much about it. So how do I find a co-founder? See, I have a few people who've been working with me for 15, 17 years, so they have some stake in different companies of mine, and मैंने आज भी इसी के ऊपर आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने 8-10 पोस्ट बनाए डिफरेंट. I just was writing. So in one of them I wrote that you have to give 70% in any relationship. It's never 50-50. If you're ready to go 70%, okay, so that was rude. ये बात आपको 4 लोगों के सामने शायद नहीं बोलनी चाहिए थी. चल ठीक है, इससे मैं आज बाद में बात करूँगा. I won't say it right now because he's my, he's my partner. Yeah. I won't say it right now. आराम से मौका जो के करूँगा. I'm not going to say तूने कैसे बोला, ego. I have to control my thing. किसी दिन वो भी कर रहा होगा, आपको नहीं पता होगा, वो भी कंट्रोल कर रहा होगा या कर रही होगी. So it's 70. If you can give more. यार ये तो इसका काम था, मुझे सुबह होना चाहिए था. Oh, he dropped the ball. चल मैं कर लेता हूँ. ये बिजनेस रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप सारा एक ही एफर्ट से 70% आपको देना है और ये सोच के ही चलना है. Of course. यही मेरा क्वेश्चन था. आई थिंक मैंने आपको देखा है और मैंने आपसे ये आई थिंक आई हैव टेकन दैट अप वेरी नाइसली कि आई हैव बीन building relationship all across the country and networking all across the world. So I want to know from you ki there is this after like keeping the relationship, and you have built like a beautiful network. How do you manage this, or how do you keep on going नेटवर्क this बनाना और relationship? नेटवर्किंग करना और नेटवर्क बनाने में 2 फर्क है. नेटवर्किंग तो लोग हेलो करके मैं किसी के साथ फोटो खिंचवा दूँ और वो like could be a Gary Vee or whatever. That doesn't mean anything to them. मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. मैं एक बार मिल दिया किसी को या 2 बार मिल दिया अगर मैं उसका फैन हूँ. बट अगर मुझे रिलेशनशिप बनानी है, I have to solve a problem for them. Like for example, there's one of India's top 10 entrepreneurs. I won't name him right now and I wanted to be somewhere around this thing. Now, one of his businesses was a pet clinic. And they wanted somebody to do digital marketing for them. उनका एजेंसी को बेवकूफ़ बना दी. Now we don't do pets, we only do hotels in our thing. Yeah. So मैंने अपने कुछ community में से कुछ लोगों को ढूंढा और उनकी मैंने कहा I'll do it for you. So I paid them from my pocket और उनका 1.25 साल 1.5 साल से उनकी सारी मार्केटिंग वगैरह सब कर रहे हैं. Because I also like dogs, so सब कर रहे हैं. And उस वजह से हम महीने में एक बार उनकी वाइफ से फोन पे बात हो जाती है, मिल लेते हैं. And how are you and everything. एक उनका एक स्पिरिचुअल इवेंट था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया. सो दैट्स हाउ. सो आप किसी के लिए भी अगर करना हो कुछ भी, You're solving a problem for them to keep that relationship. Yeah. See, how are you important to somebody if you're not solving a problem? आज मेरा ड्राइवर is one of the most important people for me right now because he is solving a problem for me that many of my friends can't. मैं अपने फ्रेंड्स को मिलता हूँ 25-30 दिन में एक बार. मैं अपने ड्राइवर मुझे रोज चाहिए. So you'll always give the priority to the relationship that are important to you. Yes. So the thing is, which are useful right now, everyday business में. Like for example, the other day, there's this guy who came. IIT. एक तो ना some amazing. IIT को IIT, 4IT, PIT, IITM, IITZ, सब कुछ करके ऐसे बना दिया. But जो भी है, very nice college we went to, and your friend also came with me.
And so वहाँ क्या हुआ that somebody called me from sir, I follow you and everything, and I'm in town. Can I meet you? So I said, yeah, I'm going for that event or whatever. So after 2 or 3 days, he said, sir, मैंने कहीं लिखा था I want to start another Instagram account, but it's too much work. So he sent me a message. He started an Instagram account for me. Oh wow. And he put मेरे सारे clips निकाल के उसने 10-12 reels बना के edit कर दिए. कहते सर आप can I show this to you? Oh, so मैंने कहा sweet. I'll pick you up on the way and we'll go to the event together. Oh, nice. So we went to the event. फिर वहाँ I was busy. He waited for me 2.5-3 hours. Then we drove back together. फिर 1 घंटा घर आने में और फिर 1 घंटा गाड़ी में बैठ के then he said सर मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ. He handed over the username password of the thing. Oh to me. wow, so you have another Instagram now. We And he can told- follow you there. And he told me, yeah, and he said that, sir, if you don't mind, I'd try to continue managing it. So I said, sweet. ठीक है. We discussed a fee, and he said, ठीक है. अब मैं उससे रोज बात करता हूँ, जो वो चाहता था. Your time he has He earned said, it. sir, I can't believe I'm talking to you. I said, why? Because when somebody says that to you, you think you're important. People think you're important. But now he is important to me because he's solving a problem for me. Wow. Solve करके ले आया. So ऐसे extra effort करके you can get into any circle. Lovely. That's a big tip for artists if you're watching this, because networking and getting into the luxury segment of solving luxury problems, you need to get into that circuit of problems that is pleasure problems. So you really have to go through that network and help someone and build for that example, art. So like I was can thinking you one give day- some tips कि Yeah. artist कैसे कर Artist सकते हैं? like I was thinking one day कि यार how should I as a challenge अभी मैंने सोचा नहीं है, so I hope I don't, but I was thinking यार how do I get to रणवीर सिंह. रणवीर सिंह. हाँ. तो मैंने सर्च किया कि उसके कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह उसकी खुद की कंपनीज चल रही हैं और ऑब्वियसली दे गॉट द बेस्ट मार्केटिंग डिजिटल एजेंसीज बॉम्बे की सबसे अच्छी वाली हैं, तो वहाँ तो मैं नहीं कम्पीट कर सकता. और जो ग्राफिक्स बनाते हैं उनके वो भी बहुत अच्छे थे, ऐसे मैं नहीं कर सकता. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट आई कैन डू सो आई कैन सेंड हिम अ थिंग थे. वो बोले क्या बोले इमीडिएटली मैसेज आएगा मेरे मैनेजर से मिल लो. हाँ. कौन मना करेगा? तो वो मैं करना चाहता हूँ और करूंगा तो उसको डॉक्यूमेंट करूंगा. लाइक इट्स एनीबॉडी कैन डू इट. You just have to find Yeah, it. true. I think that is one of the things that a lot of people are shy, and I just learned from you कि just drop a message, and I एक do सॉरी टू that. इंटरप्ट यू, मैं आपको एक और बात बताता हूँ. टोनी रॉबिन से लेके सक्सेस ज्ञान से लेके ऑल दीज बिग कंपनी व्हिच आर डूइंग इवेंट्स, लोग वॉलंटियर बनते हैं कि नहीं? वॉलंटियर बन के क्या होता है? यू गेट टू मीट ऑल द स्पीकर्स. 3-4 बार वॉलंटियर बनने के बाद पीपल को नो यू बाय योर नेम. Behind the scenes हो ठीक है, जाता है. उनमें से कुछ लोग स्पीकर भी बन जाते हैं बाद में. सो यू Establishing a relationship. Yeah. बाय बीइंग यूजफुल. Yes. By being useful, that's a thing. You have to be useful, and उसमें फिर आपका काम भी चल रहा है. सर अब ये मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि आप गैरी वी के लिए आप कैसे यूजफुल हो सकते हो? तो आपने उसका मतलब वो वीडियो देखा नहीं है. कौन सा हुआ वाला? ये? कौन सा वाला? This interview though. Sir, I've seen sir, I've seen like all the Gary Vee videos with you. का क्या था? गैरी वी का क्या था? जब गैरी वी ने एक पोस्ट डाला था. हाँ. इस पोस्ट में लिखा था इंडिया का फ्लैग लगाया था. उसमें बोला था should I come to India? Is India ready? Something like that. Is India ready for me? मैंने कहा that's the opportunity I was waiting for. So I called up everybody in my office. You've heard this story. I called up everybody in my office. I said वीडियो बनाओ, ये करो. कहाँ जा रहे हो? सब क्रिसमस पे छुट्टियों पे जाते हैं. मैंने कहा हर जगह कोई कहता मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ. सब लोगों ने जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ से वीडियो बना के भेजे. एक ने बोला एक ट्रेन में जा रहा था, ब्रो शूटिंग गैरी शुड कम टू इंडिया. वो कहता है आई डोंट नो हु गैरी इज. somebody said oh love गैरी. किसी ने ट्रेन में किसी ट्रेन चल रही है, किसी ने पूछा गैरी भी आया. सॉरी यार मुझे नहीं पता. एक बंदे ने उसमें वो भी था, वो जैसे वो टेम्पो ट्रैवलर जिसमें वो आलिया भट्ट जाती है ना उस मूवी में, ऐसे हिल रहा है. वो कहता है भैया गैरी भी को बोला है, हम नहीं जानता हूँ गैरी कौन है. So he made a hilarious video and he sent it to his manager. Yeah. He said this is Gary's answer. We've done a research all over India, जिसको हमने थोड़ा funny भी कर दिया. And overall this is what उसके नीचे पूरा synopsis भेजा. A lot of creativity involved. It's everything is on camera. He's on video. He said, dude, this is the best. Immediately he said, when are you coming to Vancouver? And 9-10 days. When are you coming to New York? 9-10. After 9 days I was there. Wow, that's amazing. I documented it that time. कि you can meet anybody. So somewhere where उसको you वो answer cannot चाहिए be. था. He wanted a survey. Okay. एक सर्व करो ना. I love Gary. I love Gary. Again, you Survey solved the करो. problem for him, which was Be useful. be useful. Awesome. This is so great. I mean, I'm learning on Zoom and learning straight from you. This is too many Like, bulbons. This is my mom and dad have always. My mom has taught me in a empathetic way
कि बेटा किसी के काम आओ, अच्छा नहीं लगता बेटा। सर आपने ये क्वेश्चन आंसर नहीं किया। आप अच्छा। ये जैसे मेरे अंदर ना ऐसा एटीट्यूड या रूडनेस नहीं है, बट मैं ना ऐसे इरिटेट हो जाती हूँ जल्दी से अगर कुछ लाइक टू डम पीपल, हम इसको बाद में कर सकते हैं edit. नहीं मत करो, तो मत करो। like two dumb people or two like I don't like that personality type of people who will come and talk to me, and I can my reaction that I've been also Gopal Krishnan, he has been telling me in the business that you have to be like how he is a straight face, not emotions, nothing. So he has been telling me no reactions को slow करो. तो आप मुझे क्या टिप दे सकते हो कि आप ये जो आपका रिएक्शंस आते हैं बिजनेस में भी आते हैं और इरिटेट भी करते हैं लोग, और वैसे लोग आ ही जाते हैं हर हमेशा बिजनेस में, तो आप उनको कैसे हैंडल करो? चीज थिंग इज कि मैं अपने ऑफिस में किसी को ये बता रहा था अभी रिसेंटली कि सुरक्षा हम लोग ना, आई मीन इट्स लाइक सेइंग मैं बैटलफील्ड में जाता हूँ, मुझे बुलेट्स आते हैं, मैं उसको कैसे हैंडल करूँ? एक सुरक्षा कवच पहन के जाते हो, यू वेयर अ बुलेट प्रूफ वेस्ट which is your meditation, which is your yoga. You get centered, you get aware, you get conscious before you go to say ठीक है, या तो मैं, और अगर कोई आदमी 2-3 बार अगर वो कुछ कर रहा है जो आपको ठीक नहीं लगता, stay away from that circle. But if you're not, that is also a conscious decision. So when you know the ownership is yours, you can make the change also. Some people say मैं right away change नहीं कर सकता, I hate my boss because मेरे को 3 महीने घर का ध्यान रखना है, तो वो आप ही की चॉइस है ना, तो रो मत, आपने 3 महीने बाद चले जाना. So it is people will be what people are. True. सर आपने एक बार वो बताया था क्लास में कि डंडा देना जरूरी होता है कभी कभी, और माँ मत बनो, डंडा दो, मतलब बॉस बनो. तो अब ये जो हमारा डिस्कशन हो रहा है कि वो रूड तो दिखाना ही पड़ता है कहीं पे एज अ कोच, एज एन एंटरप्रेन्योर. रूड नहीं दिखाना होता, you have to be firm. You have to straight but firm. See, रूड मैं तब होता हूँ जब मेरे से अपने ही इमोशंस नहीं कंट्रोल हो रहे. क्या करूँ, तेरी ऐसी की तैसी, और माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जरूरत नहीं है, वो मेरे को आता ही नहीं है. आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ. तो इससे आई ऑलवेज गिव माई सेल्फ एग्जाम्पल. अगर आप एक छोटे बच्चे से बात करो और वो रूड हो रहा है या इरिटेट कर रहा है, आप उसको क्या बोलते हो? उसको गालियां वालियां नहीं देते आप. नहीं होगा, बोल दिया ना एक बार, चलो यहाँ से, तंग नहीं करना है, इन योर रूम राइट नाउ, एंड यू डोंट इवन फील बैड अबाउट इट. बट व्हेन यू टॉक टू एडल्ट, हम खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से खुद डरे हुए हो, तो कैसे बोलूं? तो उसकी गलती नहीं है, बट यू जस्ट से द सेम थिंग. जस्ट से दैट इन दैट सिचुएशन ही, आई नीड टू शो हिम द पाथ, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी. So just in your head, think of a mini version of that guy. He's a small kid, and say, "I am sorry, it cannot happen. Can we stop this discussion and never have it again?" That's it. Nice. I think that is something that I have to take दिल पे नहीं forward. लेना. दिल पे लेते हैं ना तो फिर हम अटैक करते हैं, because we feel attacked. We feel attacked. अभी ये पर्सनल है, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, but toxic family members, if you have them around, how do you can't skip them. How do you work out with them? Not sure if I'm the right person to Because you've never experienced that, maybe. No. I have some few friends who've spoken to me about this, but I've not experienced this. But toxic friends होते हैं. हाँ, friends मतलब जिनसे आप प्यार करते हो और वो टॉक्सिक होते हैं थोड़े से. ब्रेक उतना जितना मैं कर सकता हूँ. कभी खाना भी, अल्कोहल भी पीते, कहते 1-2 ड्रिंक पी लो, टॉक्सिक है. ज्यादा ले लोगे तो वो हो जाएगा, तो इतना ले लो जितना, और थोड़ा सा फिर डिस्टेंस कर लो. ऐसे ही उतना एक ड्रिंक इन द इवनिंग इज गुड, उससे ज्यादा खराब है. इट्स पॉइजन, टॉक्सिक. सो अगर कोई आदमी आपसे नहीं डाइजेस्ट हो रहा, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप डिस्टेंस कर लो, बस ब्लेम नहीं कर. आई एम सेइंग अल्कोहल अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो कुछ लोग तो पी लेते हैं आधी बॉटल, वो कुछ नहीं होता. कुछ लोग कहते हैं 1 ड्रिंक के बाद भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो ड्रिंक थोड़ी कम कर दो. डिस्टेंस इट्स, एंड यू डोंट हैव टू, मतलब उसको जज मत करो, वो गलत है मैं गलत हूं. तो बहुत हर्ट होता है ना, उन जिनसे प्यार करते हो वही थोड़े से वैसे हो जाते, तो बहुत हर्ट होता है ना, तो इसलिए आई थिंक हम ना, जब मुझे ये मेरा आंसर है, आई माइट बी रॉन्ग, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था, मेरे को नहीं पता. जब हम लोगों के पास टाइम ज्यादा होता है ना, तब हम इस चीजों में ज्यादा सोचते हैं. मतलब 6-6 महीने जब आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो, MBA करने लंदन चले गए, व्हाटएवर, तो वहां से तो मम्मी को भी फोन नहीं करता था 3-3 साल. आई एम हैविंग फन, आई हैव अ पर्पस, मुझे एग्जाम है, सुबह टीचर बुला लेती है. आपको इमोशंस फील करने का टाइम ही नहीं होता जब आप बिजी रहते हो. तो अगर ऐसी बात है तो I'm not saying avoid the emotions, because that becomes an ulcer, right? वो avoid नहीं करना हमने. We have to talk to ourselves about who we are, what we are feeling. We have to definitely talk to ourselves what we are feeling. Put it down on paper. Talk to another person. Sometimes it's good talking to a stranger because you don't feel judged.
That's why there's therapists and all of that. That's true. And therapy is such a beautiful thing. Such a beautiful thing. Yeah. So yeah, can we talk about that a little bit of mental health? Like, what is your outlet of expression? I've started drawing. Oh wow! I'm singing. I'm like learning chess, and I'm doing yoga. Wow, singing also. I can't ask you to sing. नहीं, अभी नहीं. अभी तो 3-4 क्लासेस ही हुई हैं. आई थिंक आप बता सकते हैं कि आपने के लिए कोच भी है। हाँ, कोच भी है चारों के लिए. आप दोनों का ही वो कॉमन चीज है। क्या? इन चारों चीजों के लिए सर ने कोच दिया है, फॉर सिंगिंग, चेस, योगा, सबके लिए पर्सनल कोच है। Oh, really? So let's, I think like We can talk about a coaching. या वो आपका बेचना Sure. बेचना है। Yeah. Sure. Okay. So. There's a coach for everything. I went to. I have perfect question for this. India is growing at a rapid scale, which can reach to $300 billion of industry of coaching. And what do you think of how Indians should look forward to this opportunity? I think Success Gyan and many of my good friends are doing a great job at training coaches. आप भी कर रहे हो, आप coaches Yeah. बना रहे हो. So it's a good opportunity to be able to use your experience and tell people. पहले लोग होते थे 50 साल का हो जाऊंगा तब दूसरों को सिखाऊंगा. आज आप जूनियर एज में भी सिखा सकते हो. जैसे Rakshit is such a young guy, he's teaching people what he's learned. So coaching is great. Create your own. Again, मेरा तो formula get known, get leads, get sales है. First get known so that everything else falls into place. Most people don't have time to make videos to get known, and that's why most coaches don't work. 100%. Yeah, yeah. बस वहीं get known में सब रह जाते हैं. मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि जैसे मैं ज़्यादा आई एम गेटिंग डीपर इनटू दिस इंडस्ट्री, मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्वालिटी ही सस्टेन करने वाला है. जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वालिटी ही सस्टेन हो पाएगा. अगेन मैं गैरी वी का बार-बार एग्जांपल देता हूँ बिकॉज़ ही इज लाइक अ बाइबल फॉर मी. ही ऑलवेज सेज व्हेन इन डाउट डू मोर. ओके. सो जस्ट डू मोर ऑफ इट. अगर हमको पता क्या लगता है, ओहो 4 लीड आ गई, अच्छा चल रहा है, फिर हम चूज करते हैं. इस बार एक अच्छा था 6 lakhs वाला क्लाइंट, बाकी 1-1 लाख वाले आए, अच्छा नहीं था. बट देन अगर वो 4 में से 6 ऐसे हुआ है, 6 लीड आई है, तो व्हाई नॉट 60? अच्छा वो लीड आई थी मेरे 4 वीडियोस है, तो व्हाई यू नॉट डूइंग 400 वीडियोस? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? ओ टाइम लगता है. देन फिगर आउट अ वे दैट उससे टाइम कम लगे. बट इट्स ऑल अबाउट मोर. इनिशियली इट्स ऑल अबाउट मोर एंड मोर कंटेंट. इट्स लाइक मतलब सब 600 वीडियोस बनाओगे साल में तो 4-5 तो वायरल जाएंगे. 100%. बट देन वी लाइक, बट हमें वो मेहनत नहीं करनी होती है. मेहनत की बात भी नहीं है. जैसे वो हमने इंटरनेट मोगल्स कंटेंट मल्टीप्लायर सिस्टम अपना बनाया. देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग इट विद मी सिंस द मॉर्निंग. और 2 दिन के अंदर बन जाता है. हर चीज हो जाती है. हर चीज को आप शॉर्ट कर सकते हो, सिस्टम बैच कर सकते हो. बैच कर सकते हो. एवरीथिंग कैन बी डन इन अ फॉर्मेट. बट आई डोंट नो व्हाई पीपल, आई डोंट नो द साइकोलॉजी बिटवीन व्हाई पीपल डोंट डू इट. बट आई थिंक वो मेरा भी रिलेशनशिप कैमरा से हमेशा वैसे ही है कि बस दोस्ती करनी पड़ती है जबरदस्ती वाली. मैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. देयर इज अ डिफरेंस. लाइक बिकॉज़ हम अपने आप से जूझ रहे हैं ना. वी आर ऑल फाइटिंग विद आवर ओन सेल्फ. या और वी डोंट लव आवरसेल्व्स enough maybe. Enough and every day. Yeah. किसी दिन बहुत प्यार होता है अपने से, किसी दिन नहीं होता. That's आप why अपने आप से कैसे प्यार करते हो सर? रोज मैं रोज नहीं करता, लेकिन I try to go to the parlor, get a haircut and a shave every week. and look hair good wash, and yeah. And then wear good clothes. Yeah. And Yeah. Then I start liking myself. so someday when you're low, you just like go pamper yourself. Immediately. Awesome. I love that. There's so much that I can learn all the time from you. Yeah. So every week ये रिजवान है and I रिजवान आ रहा हूँ. उसको भी पता है मूड सर खराब मुझे होगा. बताओ कि मैं अभी ये मूड खराब होगा आज. 10 लाख रुपए से 1 करोड़ पर मंथ की जर्नी के लिए मेरे को क्या माइंडसेट होना चाहिए? Mindset होना चाहिए that you should think of yourself as a 10 lakh rupee coach, so you can only work with 10 people a year. The way you dress today, you should dress up every day, because you have to dress up like a 10 lakh rupee coach every day. अपने आप से बात करो, अपने आप से मानो. Like this is my thing, okay? I like to wear expensive stuff for myself. Yeah. Because in a place like Delhi, you can't wear something to show to others because this is one of the richest places in the world. Everybody has everything. Yeah. तो competition नहीं कर सकते यहाँ. अपने आप को ही ये अपने करना. आप को I deserve You this. feel I want good. to buy a nice car. I want to buy this thing. I feel good. Some people are like, मुझे सफेद कुर्ते में मुझे लगता है मैं राजा हूँ. तो मेरे को नहीं लगता. सो बट स्ट्रेटेजिकली जैसे 10 लाख मुझे सच में दिख रहा है कि जर्नी बहुत अलग है टू स्केल टू 10 से 1 करोड़. तो आपको मेरे बिजनेस में आपको what are the strategy steps that I should take like immediately to reach to that level? My message is the same for the last 1 year to you.
You have to create more content. Like you have to create more content. Like at least 40-50 videos. मैंने आपकी बस यही बात नहीं सुनती हूँ, बाकी सारी तो मैं आपकी सुनती हूँ क्योंकि ना बाकी सब तो चल रहा है ना. Yeah. Because the Yeah. get leads and get sales is working. Yeah. You just need to amplify it. Yeah. आपकी leads convert नहीं होती उस level पे because people say everybody doesn't know you. Not yet, yeah. So then exactly. Okay, get known पे मुझे ज़्यादा काम करना है अब. Okay. Thank you, sir. Thank you.